Good morning, student. Now, in the previous video, we completed the quadrilateral lesson. Okay. Now, आप और हम मिलके करेंगे आज सर्कल लेसन. ओके. सर्कल लेसन की शुरुआत करने के पहले हम उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड है वो लेसन वो देख लेते हैं हम लोग. मीन्स the chapter circle is most important for the 9th standard as well as in 10th standard also. So you must know what is mean by the circle, the terms which are related to the circle, the definition of each and every term. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये चैप्टर कितने पार्ट्स में डिवाइड है. So this chapter is divided into total 7 parts. कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 7 पार्ट्स में डिवाइड है. उसमें सबसे पहला पार्ट बेसिक टर्म्स. इसमें बेसिक टर्म में आएगा आपका सर्कल, सेंटर, रेडियस, chord. These are the basic. Secant, tangent, all these are the basic terms. Now these basic terms we have to learn in the basic terms this point. Okay. And the second is angle related by the chord and the point. Okay. Now the second is angle subtended by chord. Angle subtended by the chord. Angle subtended by the chord. ये हो गया सेकंड पॉइंट. पहला बेसिक टर्म, दैट इज जो रिलेटेड टर्म्स है सर्कल से, जो भी रिलेटेड टर्म्स है वो पढ़ेंगे. उसके बाद में पढ़ेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द chord. नाउ द थर्ड पॉइंट इज perpendicular from center to chord. Perpendicular from center to chord means सेंटर से chord के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे उससे रिलेटेड हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे. नाउ द फोर्थ इज द सर्कल passing through 3 points. The points are non-collinear. Okay. Now what is meant by non-collinear and what is meant by the collinear you already know in the lines and angle lesson. So it is not necessary to explain what is meant by the collinear and what is meant by the non-collinear. So circle passing through the 3 points, 3 non-collinear points, and this portion is deleted from the syllabus 2020-21. Means 2020-21 ये इसमें इस सेशन में सिलेबस से ये क्या हो गया है, कट हो गया है. मींस इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. उसके बाद में इक्वल कॉर्ड्स, 5वां पॉइंट है इक्वल chords and their distance from center. Okay, equal chords and their distance from the center. And the text is angle subtended. 6th point is angle subtended by the arc by the circle. Angle subtended by arc of circle. सर्कल के आर्क से. अब ये जो वर्ड दिया है आर्क ऑफ अ सर्कल, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लायक है. एक्सप्लेन करेंगे इसको हम लोग. और सबसे लास्ट वाला है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. Cyclic quadrilateral means the chapter is divided into total 7 parts. The first one is the basic terms, related terms, basic related terms.
द सेकंड इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड. कॉर्ड कैसे रहेंगे? बेसिक टर्म में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय द सर्कल, व्हाट इज मीन बाय द कॉर्ड, व्हाट इज मीन बाय द डायमीटर, व्हाट इज मीन बाय द सेकेंड, व्हाट इज मीन बाय द tangent, what is mean by the radius and all these things. Okay, ये पढ़ेंगे. उसके बाद में angle subtended by the chord. This is of your circle, this is of your chord AB. Okay, अब ये chord AB ने center पे बनाया एक angle. Got it? This AB is subtended by the chord at the interior of the circle. Circle के अंदर में point में बनाया angle. This is the angle subtended by the same chord at the any point on the circle. On the circle हो गया. और this is the angle made by the chord, angle subtended by the chord, same chord AB at the exterior of the circle. So these explanation we will do in the second part. The third part is the perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisect the chord. That theorem we can understood here. Means while circle is there and this is of your chord AB, and if we draw the perpendicular, then what happened when we draw the perpendicular from the center to the chord? What happened is there. So according to that two theorems and the converse are there. So that we will be studying in the perpendicular drawn from the center to chord. Now this portion is deleted, so we are not considering this portion, तो इसको हम लोग delete मार देंगे. उसके बाद में दिया है equal chords and their distance from the center. Means यदि सर्कल में दो equal chords है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस कैसा रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम लोग दो थ्योरम में से थ्योरम और उसका कॉन्वर्स अप्लाई करेंगे. Means the congruent chords are equidistant from the center and the chords which are equidistant from the centers are congruent. Or the last next है angle subtended by the arc of a circle. तो arc को मुझे explain करना पड़ेगा आपको कि arc किसको कहते हैं. arc के साथ साथ segment of the circle भी explain करेंगे. उसके बाद में sector of the circle explain करेंगे और last में है cyclic quadrilateral. तो cyclic quadrilateral का मतलब क्या हो गया? एक सर्कल है जिसके ऊपर सभी के सभी vertices है quadrilateral के. If all the vertices of the quadrilateral lie on the circle, then that quadrilateral is called as a cyclic quadrilateral. Means quadrilateral के चारों vertices एक circle पे हैं. Okay? So this is all about your lesson, that is the circle. Now first of all we start the first point, the first topic of this lesson, and that is basic term and basic concepts. Okay? तो basic term, ये लेसन का नाम ही है सर्कल. It means that we must know what is meant by the circle. सर्कल का मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन है सर्कल का, what is the meaning of the circle, what is the definition of the circle, and how can we form the definition of the circle, that we can see here. Okay, now as this is the plane, ये आपको जो दिख रहा है ये प्लेन दिख रहा है. तो यहां पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे definition of the circle. What is the definition of the circle? Okay, now this is one of the plane. ये आपका प्लेन है और इस प्लेन में नंबर ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स आर देयर. बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पे, हमको पता भी नहीं कि कितने पॉइंट्स है. यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स अवेलेबल है. अब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स अवेलेबल होने के बाद यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इस प्लेन में, इन दिस प्लेन वी विल कंसीडर ओनली वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट विच इज द फिक्स्ड पॉइंट. तो यहां पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, ये वाला पॉइंट कंसीडर किया, इसको मैंने फिक्स्ड कर दिया. ओके, और हमने एक थ्रेड कंसीडर किया, एक 2 सेंटीमीटर का थ्रेड लिया या फिर 5 सेंटीमीटर का थ्रेड लिया, और थ्रेड का एक एंड पॉइंट यहां पे रखा और दूसरे एंड पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे, ये सभी पॉइंट्स को मैंने कलेक्ट कर लिया. इस सभी पॉइंट्स का मैंने सेट बनाया
and that set is called as a circle. That set is called as a circle. So what is the definition of the circle? The set of, in the given plane, the set of all points which are at equal distance from the fixed point. क्या डेफिनेशन बोला हमने सर्कल का? सर इन द गिवन प्लेन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. ये फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स पॉइंट्स पे इक्विडिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर का है, ये भी डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर का है, ये भी डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर का है. दिस डिस्टेंस इज आल्सो 5 सेंटीमीटर. ओके, this distance is also 5 centimeter. okay, so all these points, अब यहां पे 1 2 3 4 और 5, ये 5 पॉइंट अवेलेबल नहीं है, तो इक्वी डिस्टेंस में होने वाले यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ द, बहुत सारे पॉइंट्स है, और ये सभी पॉइंट्स को यदि मैं कलेक्शन करता हूं, so that collection is considered as a circle. That collection is known as the circle. It means that the circle in the given plane, the circle is the collection of or a set of all points. Means definition लिखता हूं यहां पे, in the given plane, in the given plane, क्योंकि ये plane figure है, the set of, set or collection, the set of all points which are equidistance from the fixed point is called circle. इसको क्या कहेंगे हम लोग? सर्कल. इसका मतलब ये हो गया आपका सर्कल. What it? Now this is of your fixed point and we consider this point A. Now we can join here. This fixed point is known as the center of the circle. ये जो fixed point है O, this is called as the center of the circle. The fixed point is known as center of circle. ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हमने क्या कहा? सेंटर ऑफ सर्कल. और ये जो फिक्स इक्वल डिस्टेंस है एंड इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड radius of the circle, is called radius of circle. डेफिनेशन ध्यान में आ गई. डेफिनेशन को लर्न करना है हमको, और डेफिनेशन को लर्न करने के बाद व्हाट इज मीन बाय द फिक्स पॉइंट एंड व्हाट इज मीन बाय द सेंटर, व्हाट इज मीन बाय द इक्वल डिस्टेंस, व्हाट इज मीन बाय द रेडियस. नाउ देयर आर द नंबर ऑफ द पॉइंट्स आर देयर. अब इसको यहां पे मैंने A ले लिया, मान के चलता हूं कि यहां पे मैंने और एक पॉइंट ले लिया B. कैन वी से दैट OB इज वन ऑफ द रेडियस? यस, बिकॉज़ A and B are equidistant from the O. Can we say that C is equidistant from the point O? इसका मतलब A, B और C ये तीनों पॉइंट ये O सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे. ये है आपका 3 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 3 सेंटीमीटर. तो इक्वल डिस्टेंस पे होने वाले यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स है. इट मींस दैट वी कैन ड्रॉ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द रेडियस कैन बी ड्रॉन इन वन सर्कल. तो एक सर्कल में बहुत सारी रेडियस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. उसके बाद में देखेंगे कॉर्ड. व्हाट इज मीन बाय द कॉर्ड? कॉर्ड का मतलब क्या होगा? अ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल. सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन. It is the line segment joining any two point of the circle. सर्कल के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, that line is called as a chord of a circle. After that, diameter. What is mean by the diameter? If the same line, if the chord of a circle passing through the center of the circle, okay? अब यहां पे चेक करेंगे. See here. अब A और B सर्कल के ऊपर है, इसका मतलब वो कॉर्ड है. AB is the chord. मगर that chord is passing through the center of the circle. वो कॉर्ड कहां से जा रही है? सर्कल के सेंटर से जा रही है. It means that AB is the chord as well as the diameter of the circle.
and AC is the chord, but it is not a diameter. Why it is not a diameter? Because that chord is not passing through the center of the circle. AB is the chord which is passing through the center of the circle. Therefore, AB is called as a diameter of the circle. And diameter is always twice of radius. Diameter ये कैसा रहता है? Radius का डबल रहेगा. Radius का डबल रहेगा. After that, secant. What is meant by the secant? Now, secant is nothing but the line which intersect the circle in two distinct points. This is AB. This is the line L. लाइन L ने क्या किया है? ये सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है. Means the line which intersect the circle in two distinct point is called secant of the circle. तो ये हमने AB को क्या बोलेंगे? लाइन L is secant of circle. Got it? अब इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है. पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा. यहां पे हमने सबसे पहले क्या एक्सप्लेन किया? व्हाट इज मीन बाय द सर्कल. सर्कल के बाद में आ गया आपका सेंटर के बाद में आ गया आपका रेडियस के बाद में कॉर्ड के बाद में डायमीटर के बाद में सेकेंड. गॉट इट. अब सेकेंड के बाद जाएंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे. नाउ आफ्टर द सेकेंड वी कैन सी हियर आर्क ऑफ अ सर्कल. ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. अब ये सर्कल का डेफिनेशन आपके पास होना चाहिए लिख के, तो आप लिख लेना ये इसको. आफ्टर दैट आर्क ऑफ अ सर्कल. तो उसके पहले हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं व्हाट इज मीन बाय द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल. इसको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले. ओके. नाउ कॉन्सेंट्रिक, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल. concentric circles. Now what is meant by the concentric circle? If two or more circle having same center. अब सर्कल इतना कोई खास नहीं आएगा मेरा, ध्यान रखना थोड़ा सा. तो this is one of the circle, this is another circle having the same center. दोनों सर्कल के सेंटर सेम है. मान के चलो आपने कोई पानी का तालाब है, मींस तालाब है या फिर सीर है या फिर रिवर है जहां पे पानी रुका हुआ है. वहां पे यदि आप पत्थर डालते हो तो आपको सर्कल्स दिखाई देते हैं किनारों की तरफ जाते हुए. तो ये ऑल द सर्कल हैविंग द सेम सेंटर, सो ऑल द सर्कल्स आर कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. तो ये सभी सर्कल्स को क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बाद में आता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल. कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. कॉन्ग्रुएंट सर्कल, व्हाट इज मीन बाय द कॉन्ग्रुएंट सर्कल? नाउ आपने 1 रुपए का कॉइन लिया, उसके बाद में 2 कॉइन लिए 1 रुपए के, और दोनों 1 रुपए के कॉइन को आपने एक के ऊपर एक रखा, तो उनके जो सरकमफेरेंस रहेंगे वो सरकमफेरेंस आपस में क्या रहेंगे? कोइंसाइड हो जाएंगे, एक के ऊपर एक एग्जैक्टली आएंगे. यदि हमने 1 रुपए का कॉइन ऊपर नीचे रखा और 50 पैसे का कॉइन ऊपर रखा तो आपके सरकमफेरेंस कोइंसाइड नहीं होंगे. तो जो 1 रुपए के जो 2 नए कॉइन हैं, दैट कॉइन्स आर कॉल्ड एज अ कॉन्ग्रुएंट कॉइन्स. मींस कॉन्ग्रुएंट है, मींस द सर्कल हैविंग द सेम रेडियस और ए इक्वल रेडियस. दिस इज ऑफ योर R1 and this is of your R2. If R1 is equals to R2, we can say that both the circles are the congruent circle. अब सर्कल का रेडियस सेम है, इसका मतलब सर्कल का डायमीटर भी सेम है. सर्कल का रेडियस इक्वल है, इसका मतलब सर्कल का डायमीटर अगेन इक्वल. आफ्टर दैट सेमी सर्कुलर रीजन. व्हाट इज मीन बाय द रीजन? सर्कुलर रीजन. उसके बाद देखेंगे हम लोग सर्कुलर रीजन. सर्कुलर रीजन. व्हाट इज मीन बाय द सर्कुलर रीजन? सर्कुलर रीजन का मतलब हो गया द पॉइंट्स व्हिच आर लाई ऑन द सर्कल एज वेल एज पॉइंट आर इंटीरियर ऑफ द सर्कल. मींस ऐसे पॉइंट
जो सर्कल के अंदर भी है और सर्कल के ऊपर भी है, बाहर नहीं। बाहर के पॉइंट्स आपको नहीं लेना है, ओके। सर्कल के अंदर और सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स को यदि मैं कंबाइन करता हूं, एक जगह पे लेता हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर रीजन, एंड आफ्टर दैट द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। Now, if the circle is if the chord is passing through the center of the circle, so this portion, ये जो half of the circle portion है, this portion is called as a circular region. So we will stop here, and the theorems or exercise. The first exercise you have to do yourself by yourself, okay? Means first exercise आपको करना है, सभी बेसिक के ऊपर दिया है, तो पूरा का पूरा जितना भी बेसिक है ये चैप्टर का, इंटीरियर, व्हाट इज मीन बाय द इंटीरियर, व्हाट इज मीन बाय द एक्सटीरियर, व्हाट इज मीन बाय द सर्कल, इनसाइड द सर्कल में क्या, मान के चलो OA इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है एंड OB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ द सर्कल है 5 सेंटीमीटर, तो क्या ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर रहेंगे क्या, A और B? नहीं। तो इसमें A पॉइंट सर्कल पे रहेगा, तो B पॉइंट कहां पे रहेगा, सर्कल के बाहर। रेडियस से कम डिस्टेंस है तो सर्कल के अंदर आएगा पॉइंट, और रेडियस जितना है तो सर्कल के ऊपर आएगा, और रेडियस से ज्यादा है तो सर्कल के बाहर आएगा। यहां पे हम लोग रुकते हैं। यू हैव टू सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज बाय यूजिंग basic concept, and everyone should write all the definitions, all the informations which I provide you in this video in your notebook.